मार्केटिंग में करियर बनाना है आफ्टर योर एमबीए, देन इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ अराउंड द मार्केटिंग प्रोफाइल एंड आपको बताने वाला हूँ द टॉप मार्केटिंग फर्म्स और द मोस्ट सॉट आफ्टर मार्केटिंग फर्म्स दैट यू कैन गेट अ जॉब इन आफ्टर अ टियर 1 एमबीए। उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द करियर ट्रेजेक्ट्री इन टिपिकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल, द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर अ फ्यू years, and also going to tell you the type of CV and skills required to get into these kind of roles. So starting with the top marketing firms, and याद रखना मैं सीक्वेंस में तो बोलूंगा but it does not indicate any ranking. कोई कंपनी हो सकता है सैलरी वाइज बेटर हो, कोई कंपनी हो सकता है रोल वाइज बेटर हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट एज वेल. However, yes, there are certain companies which are more sought after in MBA colleges than the others, so I'll say that during the course of the video. However, it does not indicate any ranking. Number 1 पे है HUL और हिंदुस्तान यूनिलीवर, always among the top 3 most sought after marketing firm in any top tier MBA college. अगर आपने वो बुक भी पढ़ा होगा CEO Factory, that was basically based on HUL. So काफी different CEOs across different firms have been past employees at HUL. And the reason also is because of the management trainee program. उनका management trainee program is regarded very highly. A lot of leadership skills आप सीखते हो just after campus, आप ये program join करते हो and it is regarded very very highly to teach you leadership skills. Leadership skills के लिए वो basically prepare करता है आपको. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जाना जाता है and that's why it's very sought after as well. And अगर आप पे वाइज भी देखोगे तो it's one of the top payers in this particular category. अगर आप top tier MBA के बाद join करते हो HUL, you will probably get a salary in upwards of 30 lakh. Number 2 पे है PNG, very much like HUL, pays really well, has a lot of product categories, so definitely a very good company, very good marketing company to join. एक special thing है PNG में, that is you can forego the sales stint. काफ़ी लोगों को direct marketing stint मिल जाता है PNG में, unlike other FMCG firms. अगर आप देखोगे HUL में भी आप एक sales stint करोगे, उसके बाद marketing stint करोगे, but PNG में a lot of people directly join the marketing stint. तो अगर आपको sales stint avoid करना है, 2-3 years का जो sales stint होता है वो avoid करना है, तो probably PNG can be a preferred option, but obviously this option does not exist for everyone. Number 3 पे है Mondelez, known for very creative marketing, creative advertisement. Basically Dairy Milk and other chocolates जो firm बनाती है, that is Mondelez. And अगर आप Mondelez join कर लेते हो, then chocolate industry में तो definitely you will establish your presence and you will learn a lot about this particular industry. कि आप कोई भी other firm भी join कर सकते हो chocolate specifically industry के लिए, आप कोई भी other firm join कर सकते हो, they will offer you a very good switch as well and it provides a very stable career as well. Number 4 पे है ITC, very very stable career. Usually लोग ITC को देखते हैं as a very long term employer because ITC looks after its employees really really well. Salary हो सकता है initial stages में इतनी नहीं हो जितनी शायद HUL की PNG की हो, but it does offer very good salary as well. थोड़ा कम हो सकता है, but the idea is it looks after its employee well. जो perks मिलते हैं आपको in future years, that is also really well in ITC. That's why एक stable career provide करती है. Number 5 पे है PepsiCo, known for beverages and snacks. अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करते हो स्नैक्स एंड बेवरेज मार्केट में, तो आप अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर लोगे, बट नोन फॉर एग्रेसिव सेल्स एंड मार्केटिंग स्टिंट. ज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इज वेरी वेरी सिलेक्टिव ये फर्म एंड डेफिनेटली पेज अ लॉट, बट काफी सिलेक्टिव है. इन इवन टॉप टियर एमबीए कॉलेजेस से काफी सिलेक्टिव स्टूडेंट्स जा पाते हैं. नंबर 6 पे है कोका कोला, वेरी मच लाइक पेप्सिको, पे एंड एवरीथिंग काफी सिमिलर होता है पेप्सिको के साथ साथ, एंड अगेन बेवरेजेस मार्केट में इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग फर्म्स. हाउएवर जस्ट लाइक पेप्सिको दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिलेक्टिव. टॉप टियर एमबीए से भी बहुत कम लोग, आई थिंक 1 or 2 people from IMABCs can make it to this particular company. Number 7 पे है Colgate Palmolive. आप एक बार सोचोगे कि शायद प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, however Colgate Palmolive is a very sought after company especially because of the kind of pay that it provides. काफ़ी हाई पे प्रोवाइड करती है, ऑलमोस्ट लाइक HUL. आई थिंक 27-28 लाख स्टार्टिंग पैकेज, फिक्स पैकेज जो रहता है वो 27-28 तक ही जाता है. दैट वाज द इनिशियल डेज. आई थिंक अभी तो और भी इंक्रीज हो गया होगा, इट इज़ 2-3 years पहले का डेटा है, सो अभी तो और भी इंक्रीज हो गया, प्रॉब्ली अपवर्ड्स ऑफ 30 itself. So definitely pays a lot, but yes, the kind of stints that you will get, आप सोचोगे कि शायद HUL में जितने डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कोलगेट पामोलिव में शायद उतने प्रोडक्ट कैटेगरीज आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओ. नंबर 8 पे है नेस्ले, लाइक HUL PNG, काफी सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर आप देखोगे यूजली टॉप 20 स्कूल्स में काफी ईयर्स ये नहीं जाते हैं, सो सिलेक्टिव भी है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट कम भी होता है फ्रॉम इंडियन बी स्कूल्स, तो वो एक डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगा. इन टर्म्स ऑफ पे अगर आप देखोगे HUL PNG से थोड़ा कम मिलेगा आपको नेस्ले में, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी. बहुत सारे कैटेगरीज एग्जिस्ट करते हैं, चॉकलेट बोलो या बेबी केयर स्पेशली अगर आप देखो तो नेस्ले का वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है. सो दैट्स वाई वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द रोल्स दैट यू कैन गेट, बट अगेन वेरी सिलेक्टिव एज वेल. नंबर 9 पे है Reckitt Benckiser. सो दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट RB इन टर्म, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा फेमस है प्रॉब्ली कंसिडरिंग द ब्रांड नेम, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग एटलीस्ट दे नो अबाउट इट. एंड इनका एक पॉपुलर थिंग है कि ये काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करते हैं इंडियन मार्केट से, एंड दैट्स वाई
इवन फ्रॉम टियर 2 बी स्कूल्स ये काफ़ी ज़्यादा हायर करते हैं. सो दैट्स वाई इन सेल्स रोल बोलो, मार्केटिंग रोल बोलो, Reckitt Benckiser is a company that you can definitely target. They will hire a lot of people as well. पे वाइज भी अगर आप देखोगे एवरेज देते हैं, मे बी स्लाइटली लेसर देन HUL. आप 25-26 आप स्टार्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिक्स सैलरी. नंबर 10 पे है किम्बर्ली क्लार्क. इफ यू नो हगीज, तो उसके लिए फेमस है ये पर्टिकुलर कंपनी. ऑब्वियसली द थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आप काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो. आप किड्स सेक्शन में चले जाते हो, आप किड्स की कैटेगरी में चले जाते हो, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू टारगेट आफ्टर दैट. आप जब स्विच भी करोगे अक्रॉस डिफरेंट FMCG फर्म्स, आपकी जो कैटेगरी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. सो दैट यू कैन से इज वन डिसएडवांटेज. बट एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बोलो, या फिर इन टर्म्स ऑफ पे बोलो, या फिर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बोलो, ये कंपनी काफी अच्छी है. नंबर 11 पे है एशियन पेंट्स. सो एशियन पेंट्स क्या है, इट इज ऑल्सो नोन फॉर वेरी क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट्स, क्रिएटिव मार्केटिंग, एंड जो सेल्स स्टिंट होता है इनका वो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है. आपको बहुत ज्यादा विजिट्स करने पड़ेंगे सेल्स स्टिंट में. सो सेल्स स्टिंट के लिए काफी लोग छोड़ भी देते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को, बट द काइंड ऑफ लर्निंग दैट यू गेट फ्रॉम दैट सेल्स स्टिंट इज वैल्यूड वेरी हाईली. जस्ट लाइक HUL का मैंने बताया था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत वैल्यूड होता है. एशियन पेंट्स का भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है दैट इज हाईली वैल्यूड इन द मार्केट. एंड अगर आप पे वाइज देखोगे तो पे वाइज भी काफी अच्छा प्रोवाइड करती है. प्रॉब्ली नॉट एज मच एज HUL. अगेन 25 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फिक्स पे इन एशियन पेंट्स एज वेल. नेक्स्ट मैं 3 फर्म्स को मिला देता हूँ, मारिको, Dabur and Wipro Consumer Care. A lot of students before entering MBA colleges do not know about it. Marico as a company तो आप जानते हो, however वो कैसे हायर करते हैं, कितना हायर करते हैं वो आप नहीं जानते. But these are also sought after marketing firms. पे वाइज यूजली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा कम रहेगा, बट एज यू क्लाइंब अप द लैडर डेफिनेटली पे इंक्रीज होती रहती है. एंड अगर आप इन कंपनीज में चले जाते हो, मान लो आपको टॉप मार्केटिंग फर्म लाइक HUL नहीं मिला, आप इन मार्केटिंग फर्म्स में जाते हो, उसके बाद आपका स्विचिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. बट दीज आर ऑल्सो वेरी गुड कंपनीज टू मेक योर करियर इन. पे थोड़ा कम हो सकता है इनिशियली, हाउएवर वेरी गुड कंपनीज टू स्टार्ट योर करियर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट. आपने देखा होगा अभी तक मैंने जितनी कंपनीज के बारे में बताया सब कुछ B2C कंपनीज थे या फिर FMCG फर्म्स थे स्पेसिफिकली. बट ऐसे सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए काफ़ी B2B फर्म्स भी हायर करते हैं, एज वेल एज एंटरप्राइज सेल्स के लिए भी हायर करते हैं. तो वैसे भी कुछ फर्म्स होते हैं, आप यूजुअली एक्सपेक्ट करोगे कि FMCG फर्म में जो आपको सैलरी मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, बिकॉज उनको ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा सेल्स पुश करने की ज़रूरत होती है फॉर FMCG प्रोडक्ट्स. इसलिए सैलरी वर्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पर, इसलिए वो उसमें हायर पे भी मिलता है. B2B एंटरप्राइज सेल्स भी एग्जिस्ट करती है. हो सकता है इनिशियल सैलरी आपकी थोड़ी कम हो, बट ये डेफिनेटली दैट दे ऑल्सो ऑफर सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल. एंड अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कंपनीज हैं जो एंटरप्राइज सेल्स या फिर B2B सेल्स के लिए रोल ऑफर करते हैं. फर्स्ट पे डेफिनेटली गूगल है. गूगल में भी आप एंटरप्राइज सेल्स कर सकते हो, मार्केटिंग जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो. गूगल पे वेरी वेरी सॉट आफ्टर रिक्रूटर, जस्ट द नेम इज इनफ. बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं आपको ऑफिस में एंड एवरीथिंग. दैट्स वाई इट्स अ वेरी सॉट आफ्टर कंपनी एज वेल. उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट भी काफ़ी सारे B2B सेल्स करना होता है उनको. दैट्स वाई दे रिक्वायर पीपल, इवन मार्केटिंग की ज़रूरत होती है. सो दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो कम्स एट नंबर 2. इसके बाद है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट भी ऑफर करते हैं काफ़ी सारे B2B प्रोफाइल्स उनको चाहिए होते हैं, सेल्स प्रोफाइल चाहिए होते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए होता है. सो अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऑल्सो ऑफर दीज काइंड ऑफ रोल्स. उसके साथ साथ है मेटा भी है. उसके बाद मेटा ऑल्सो ऑफर्स दीज काइंड ऑफ रोल्स. सो B2B सेल्स में अगर आप जाना चाहते हो, यूजली इंडिया से मेटा में हायर होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली डायरेक्टली फ्रॉम द कैंपस और डिफिकल्ट हो जाता है. हाउएवर अगर आप बात करो गूगल, येस दे कम ऑन कैंपस. माइक्रोसॉफ्ट दे कम ऑन कैंपस. उसके बाद अमेजॉन फ्लिपकार्ट दे ऑल्सो कम ऑन कैंपस. मेटा यूजली कैंपसेस से नहीं हायर करते हैं, बट आफ्टर 1 or 2 years और मे बी ऑफ कैंपस आप अप्लाई कर सकते हो या फिर लैटरल में जा सकते हो, मेटा ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद IT फर्म्स होते हैं लाइक TCS हो गया, विप्रो हो गया. तो दीज आर सर्टन फर्म्स दैट यू कैन गेट इनटू. बहुत उनको भी ऑब्वियसली लगता है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द क्लाइंट्स एंड एवरीवन. अगेन ये आप बोल सकते हो कि B2B सेलिंग हो जाता है या फिर B2B मार्केटिंग हो जाता है. तो TCS, विप्रो, इन्फोसिस, दीज काइंड ऑफ फर्म्स ऑल्सो ऑफर सेल्स प्रोफाइल. उसके साथ साथ इसके बाद बैंक्स होते हैं, जो इंडियन बैंक्स है, रिटेल बैंकिंग, वो भी काइंड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल ऑफर करते हैं. चाहे आप ICICI बोलो या एक्सिस बोलो या HDFC बोलो, दे ऑल्सो ऑफर दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल. सो इसके बाद विल मूव टू द करियर ट्रेजेक्ट्री एंड द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक इन दिस रोल. हाउएवर बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आप अगर वर्क भी कर रहे हो एंड ऑनलाइन MBA परस्यू करना चाहते हो टू परस्यू से मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और एनी अदर स्पेशलाइजेशन एज वेल, then it's very important to choose the right college, the government approved
right college, and that is where the partners of this video come in handy, which will help you find the right universities for your online MBA, which are government approved, and that is College Vidya. And there's a great news at the moment, because there's a new feature rolled out on the website where you can get a subsidy of up to 10,000 once you take admission in any university through College Vidya. And now let's explore the website. So if you go to the website, there are various UG, PG and other online courses. You can select the course that you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities for you. You get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can connect with College Vidya experts for free audio video career counseling as well. These counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. With Add to Compare, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placement, student rating, EMI, facilities, etc. A good benefit with College Vidya is for the fees, they also give you EMI options even if the university doesn't. The best part is College Vidya redirects you to authentic university website, which prevents you from the fake ones and possible scams. College Vidya also has jobs and internship portal, which is accessible to students from day one of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internship. Overall, it's a one-stop solution for you. I will drop the link in the description and in the pinned comment. You can check it out from there. अब आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टॉप सेल्स एंड मार्केटिंग फर्म्स के करियर ट्रेजेक्ट्री में, एंड यूजुअली जो FMCG फर्म्स होते हैं उसके लिए मैं आपको करियर ट्रेजेक्ट्री बता देता हूँ, बिकॉज दोज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर मार्केटिंग फर्म्स इज वेल, एंड उनका एक वेल डिफाइंड करियर ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है. अगर आप ज्वाइन करते हो कोई भी FMCG फर्म लाइक HUL, PNG या फिर कोई भी और फर्म, आप यूजुअली ज्वाइन करोगे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम में क्या होगा, आपको डिफरेंट स्टिंट्स करवाए जाएंगे. 3-4 months of sales, then 3-4 months of marketing, and then again 3-4 months of say e-commerce या फिर digital marketing. So this 1-year stint will give you a holistic overview. उसके बाद आप मोस्टली ज्वाइन करोगे एज एन ASM यानी कि एरिया सेल्स मैनेजर. एरिया सेल्स मैनेजर का रोल क्या होता है, बेसिकली इट इज मोर काइंड ऑफ सेल्स काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, जहां पर यू विल बी ओवरसीइंग द सेल्स ऑफिसर. आप काफी ज्यादा फील्ड विजिट करोगे. यू विल बी पुशिंग योर प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन. आपको एक रीजन असाइन कर दिया जाएगा, वहां पर यू विल बी ओवरसीइंग द सेल्स ऑफिसर्स. उसके साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करोगे, आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट पुश करोगे. दैट इज द रोल ऑफ एन एरिया सेल्स मैनेजर. सो 2-3 years आप एरिया सेल्स मैनेजर के रोल पे रहोगे. डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रोल में काफी ज्यादा ट्रैवल, काफी ज्यादा फील्ड विजिट्स हो सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ स्टेज वे यू लर्न अ लॉट. आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या होता है. अगर आप एक अच्छा ASM रोल नहीं कर पाते हो, देन डेफिनेटली मार्केटिंग में आपको आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है. इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव दिस काइंड ऑफ अ रोल कि पहले आप जाके मार्केट समझो, फील्ड में जाके समझो कि हाउ योर प्रोडक्ट्स आर बीइंग पुश्ड, हाउ द सेल्स ऑफिसर्स ऑपरेट एंड एवरीथिंग. उसके बाद आप मार्केटिंग प्रोफाइल्स में जाते हो. तो इसके बाद ASM के बाद आप 2-3 years बाद जा सकते हो. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स होते हैं, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो सकता है. या तो आप सेल्स में कंटिन्यू कर सकते हो, यू विल बिकम अ रीजनल सेल्स मैनेजर. आपका रीजन एक्सपैंड कर दिया जाएगा, यू विल कंटिन्यू इनटू सेल्स. या फिर आप मार्केटिंग में जा सकते हो, दैट इज यू विल गेट इनटू से ब्रांड मैनेजर्स, या फिर ब्रांड मैनेजर जैसा डेजिग्नेशन मिल जाएगा, आप मार्केटिंग में चले जाओगे. या फिर आप हो सकता है डिजिटल कॉमर्स में चले गए, ई-कॉमर्स में चले गए. देयर द डेजिग्नेशन कैन बी समथिंग लाइक की अकाउंट प्लानर या फिर की अकाउंट मैनेजर. इस टाइप की डेजिग्नेशन हो सकती है. सो रीजनल सेल्स मैनेजर तो आपको समझ आ गया होगा. बेसिकली वो आपका स्कोप एक्सपैंड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रीजन. एरिया सेल्स मैनेजर से रीजनल सेल्स मैनेजर. अगर आप ब्रांड मैनेजर वर्क करते हो, देन यू गेट इनटू कोर मार्केटिंग, यानी कि अब आप एक प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, एक रीजन के लिए नहीं, बट मोर अबाउट अ प्रोडक्ट आप एक रिस्पॉन्सिबल होगे. तो उस प्रोडक्ट का आपको 4 P's जो बेसिकली होता है मार्केटिंग में, आपने सुना होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, वो बेसिकली आपके अंडर आ जाएगा. प्रमोशन में क्या करना है, कैसे पोजीशन करना है उस प्रोडक्ट को, कैसे एडवर्टाइजमेंट्स लाने हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो सब कुछ आपका एक टारगेट हो जाएगा. सो दैट विल बिकम योर प्रोडक्ट. सो आप उस प्रोडक्ट को हैंडल करोगे, एंड एज यू प्रोग्रेस अप द लैडर, बेसिकली आप एक प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेज करने लग जाओगे, कंप्लीट कैटेगरी मैनेज करोगे, एंड देन लीडरशिप रोल्स में आगे चले जाओगे. एंड अगर आप डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स में जाते हो, देन यू विल बिकम अ की अकाउंट मैनेजर, या फिर कुछ ऐसे प्रोफाइल आपको मिल जाएगा. मान लो आपका प्रोफाइल, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो Amazon में लिस्ट हो रहा है, या फिर फ्लिपकार्ट में लिस्ट हो रहा है, या फिर क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, ये सब में लिस्ट हो रहा है. तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी वन प्लेटफॉर्म. हो सकता है आप Amazon का सेल्स देखते हो, या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल्स देखते हो, या फिर ब्लिंकिट पे सेल्स देखते हो, जेप्टो पे सेल्स देखते हो. तो यू विल बी गिवन वन प्लेटफॉर्म. उसके बाद ऑब्वियसली एज यू प्रोग्रेस अप द लैडर, वो
स्कोप एक्सपैंड होता जाएगा, बट मोस्टली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो ये टिपिकल करियर ट्रेजेक्ट्री होते हैं। एंड इसके बाद आप जब लीडरशिप पोजीशन पे चले जाते हो, देन यू कैन बिकम अ वीपी, सीनियर वीपी एंड अदर लीडरशिप पोजीशंस होते हैं। नोमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है सबका। हाउएवर उसके एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में चले जाते हो। मतलब एक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक कैटेगरी में क्या हो रहा है, एक रीजन में क्या हो रहा है, आप उससे थोड़ा फोकस हटा देते हो अपना, एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसी चीज़ें ऑपरेट हो रही है, क्या आपको चेंजेस लाने हैं, वो सब पे आप फोकस करते हो। एंड एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टारगेट हो या फिर एक स्पेसिफिक रीजन का टारगेट हो, उससे थोड़ा फोकस आप हटा दे सकते हो। ऑब्वियसली इन एन एफएमसीजी फर्म आपका फोकस तो फिर भी रहेगा ही, कैसा सेल हो रहा है आपका प्रोडक्ट, कैसे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है एंड एवरीथिंग, बट यू आर मोर कंसर्न अबाउट द ओवरऑल बैलेंस शीट देन द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड इंडिविजुअल रीजन्स। एंड अगर B2B फर्म्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी डिफरेंट डेजिग्नेशन होते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल में आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हो, की अकाउंट मैनेजर्स बन सकते हो, की क्लाइंट मैनेजर्स बन सकते हो, की क्लाइंट पार्टनर्स बन सकते हो। सो काफ़ी सारे ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं। टिपिकली अगर आप देखोगे, मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रोडक्ट देखना, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्रोडक्ट मान लो आप बेच रहे हो HUL को या फिर PNG को, कोई भी फर्म हो सकता है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर कोई सिमिलर सॉफ्टवेयर फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो आप हो सकता है वो सेल्स मैनेज करते हो टू द ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सेल्स टू अदर कंपनीज, ये एक प्रोफाइल हो सकता है। या फिर मान लो यू आर टैग टू वन पर्टिकुलर कंपनी, मान लो आपको HUL के साथ टैग कर दिया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बस HUL में जाके बेचोगे। सो दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ प्रोफाइल। तो आपको समझ आ रहा होगा कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल कैसे होते हैं। एक प्रोडक्ट आप मल्टीपल क्लाइंट्स को जाके बेचते हो, या फिर एक क्लाइंट को जाके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो। तो ये डिफरेंट आप कैसे ऑपरेट करते हो, आपको क्या रोल मिलता है, उस पर डिपेंड कर सकता है। बट दीज आर टिपिकली द काइंड ऑफ career trajectory that you can have in a B2B sales and marketing profile. So B2B sales and marketing profile के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, because it is very different as well and it would require a separate video. But अभी डिस्कस कर लेते हैं the salary that you can expect in these FMCG firms. Usually जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी टॉप टियर MBA कॉलेजेस में, वो आपको आप सेल्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा प्रोफाइल से आप स्टार्ट करते हो। सो 25 to 30 लाख आप फिक्स सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। येस, इट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 35 एज वेल। However, 25 to 30 is what I'm saying is an average, and in 5-6 years you can expect कि जो ये फिक्स सैलरी है वो अराउंड 50 तक जा सकती है। तो 45 to 50 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू विल स्टार्ट अर्निंग इन 5 years। कोई भी टिपिकल जो मैंने FMCG फर्म्स बताए थे, अगर आप उनमें हो। एंड अगर आप टियर 2 MBA या फिर टियर 3 MBA कॉलेजेस से भी हो, तो यूजुअली सेल्स स्टिंट उनका ज़्यादा होता है, सेल्स प्रोफाइल में ज़्यादा जाते हैं, वहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो टॉप FMCG फर्म्स थे, वहाँ से आपको 10-15 लाख का पैकेज लग सकता है। अगर बहुत अच्छा फर्म हो तो मे बी 16-17 लाख का पैकेज मिल जाएगा। अगर थोड़ी मतलब लो टियर फर्म हो तो हो सकता है यू विल गेट अ पैकेज ऑफ अराउंड 9 to 12 लाख। सो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसा पैकेज हो सकता है। बट ऑब्वियसली आप भी अगर 5 years में कंपेयर करोगे तो यू विल एंटर, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एज वेल, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25-30 लाख आप क्रॉस कर जाओगे अपनी सैलरी विद इन 5 years। इसके बाद द टाइप ऑफ CV एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट इनटू दीज मार्केटिंग फर्म्स। अगर कैंपस में आता है ये पर्टिकुलर कंपनी, देन CV शॉर्टलिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए आपको CV में हाईलाइट करना पड़ेगा कुछ सेक्शंस, एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन एंड पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केटिंग फर्म्स के लिए, बिकॉज एकेडमिक्स इज जस्ट ओके वन थिंग, उसके साथ साथ आपने वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पर किया है, कुछ भी किया है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। बट अगर मार्केटिंग रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो, दे वॉन्ट टू सी कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपने अगर आपका कोई पैशन है तो उस पैशन को लेके आपने क्या किया है, क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो। सो वो सब स्किल्स दिखाई देती है अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका लीडरशिप स्किल्स बाहर आता है, बिकॉज यू नीड टू मैनेज पीपल, यू नीड टू डेलीगेट टास्क टू पीपल इन मार्केटिंग। अगर आप सेल्स स्टिंट ज्वाइन करते हो, यू नीड टू डेलीगेट टास्क टू सेल्स ऑफिसर्स। सो क्या आपने वो पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड किया है। सो ये इन दो सेक्शन पे आपको डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हाईलाइट करने पड़ेंगे कि आपने आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स भी काफ़ी कुछ पैशन फॉलो किया है, उनमें अचीवमेंट्स अचीव किए हैं। उसके साथ साथ आपने पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाया है। एंड एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप फ्यूचर में मार्केटिंग में करियर परस्यू करना चाहते हो, देन आज से आप जो भी एड्स देखते हो उनके कॉपीज बनाना शुरू कर दो। आप उन एड्स को रीइमेजिन करना
करना शुरू कर दो कि अच्छा मैंने आज ये पर्टिकुलर ऐड देखा, मान लो ये डेयरी मिल्क का ऐड देखा, अगर मैं इस ऐड को लिखता तो कैसे लिखता, और अगर मैं ट्विस्ट करता इस ऐड को तो कैसे ट्विस्ट करता। एंड आप उन एड्स को एनालाइज करना भी शुरू कर दो कि क्या अच्छा था, क्या खराब था, एंड मेक अ पोर्टफोलियो। सोशल मीडिया में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, या फिर जस्ट एक राइटअप कलेक्ट कर सकते हो दैट यू कैन शो टू द इंटरव्यूअर्स लेटर, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप वो कर सकते हो। इट्स डेफिनेटली वेरी मच रिक्वायर्ड, बस मार्केटिंग के लिए नहीं, काफ़ी सारे अदर स्पेशलाइजेशन के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग आज आपको चाहिए। इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कर लो। उसके साथ साथ डेटा का कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग, सो आप वो भी कर लेना। डेटा एनालिटिक्स भी अगर आप बेसिक डेटा एनालिटिक्स कर लेते हो, दैट ऑल्सो विल बी वेरी यूजफुल। उसके साथ साथ आप अगर ब्रांडिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ये सब पे और सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ऑब्वियसली इट्स एन एडिशनल एडवांटेज, बट यूजली आपके जो जो भी एमबीए करिकुलम रहेगा उसमें आपको ब्रांड मैनेजमेंट ये सब तो सिखाई जाएगा। बट अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेशंस है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग प्रोफाइल। एंड अगर आप और भी प्रोफाइल्स के बारे में जानना चाहते हो आफ्टर एमबीए, लाइक कंसल्टिंग, फाइनेंस, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कवर किए हैं। स्पेशली मैंने एक पॉडकास्ट किया था विद माई फ्रेंड हु जस्ट लेफ्ट वैकेंसी, तो वहाँ पर डिस्कस किया अबाउट कंसल्टिंग एज अ करियर। कंसल्टिंग में क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या करियर ट्रेजेक्ट्री एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड हो देन आप उस वीडियो को स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड अगर आप वो वीडियो देखने आते हो मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।